let's start talking about osteomyelitis, ठीक है? And this is a very important topic. And what exactly is osteomyelitis? Osteomyelitis is basically inflammation of the bone and the marrow. Because osteo means bone and myelitis, basically MYE means the marrow. So osteomyelitis together means inflammation of the bone and inflammation of the marrow, ठीक है? इसलिए when we talk about, we've actually used the suffix myelo before myelogenous, for example. So this should help you remember that osteomyelitis means inflammation of the bone and inflammation of the marrow. Osteomyelitis is mostly infectious in nature and it can be caused by any infective agent from bacteria, fungi to viruses, etc. But mostly the affecting or the implicated agent is either a bacteria and to a lesser extent a fungi, ठीक है? So इसलिए we use the term pyogenic osteomyelitis to imply that in this scenario the infective agent is in fact a bacteria, ठीक है? अब क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि किन तरीक़ों से the organism can reach the bone. एक ऑप्शन ये है कि हेमाटोजेनस स्प्रेड है यानी ब्लड के ज़रिए, ठीक है? और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है who are apparently healthy and yet they develop osteomyelitis of the long bones. This is actually interesting and I'll explain that later. दूसरा तरीका ये होता है कि किसी contiguous site से infection bone तक पहुंचता है. For example, primary infection joint का था and from that particular adjacent site, from that contiguous site, the infection directly reached the bone. Third option ये है कि direct implantation हुई है, बाहर से organism directly bone तक पहुंचा है. कैसे पहुंच सकता है? In the context of a compound fracture. Compound fracture में क्या होता है कि bone भी fracture होती है and soft tissue को भी trauma होता है. And if it is an open fracture, the bone is exposed to the outside environment, leading to direct implantation. ठीक है? इसके अलावा during an orthopedic procedure या during a surgical procedure भी implantation directly into the bone हो सकती है, ठीक है? So these are very important things. अब क्वेश्चन ये है कि हेमाटोजेनस स्प्रेड एक नॉर्मल चाइल्ड में कैसे होगा? जनरली एक सिचुएशन क्रिएट होती है नोन एज बैक्टीरिया, मीनिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड, एंड ये होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सम माइनर इंजरी, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, माइनर एब्रेशन. उसकी वजह से सम हाउ बैक्टीरिया हैज़ एंटर्ड इनटू द ब्लड एंड हैज़ एंडेड अप रीचिंग द बोन. सो दिस एक्सप्लेन्स कि अदरवाइज हेल्दी चिल्ड्रन में हेमाटोजेनस स्प्रेड के ज़रिए यानी ब्लड के ज़रिए इन्फेक्शन बोन तक कैसे पहुंचता है. किसी माइनर ब्रेक इन द स्किन बैरियर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप करता है, उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ठीक है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट MCQ पूछते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म क्या है. सो द आंसर इज़ कि इन दोज केसेस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म वॉज सक्सेसफुली रिकवर्ड ऑन कल्चर, उनमें से 80 to 90% वर स्टाफ ऑरियस, Staphylococcus aureus. This is very important as far as questions are concerned, as far as MCQs are concerned. Staphylococcus aureus, very important. अब क्वेश्चन ये है कि why Staph aureus? It's because जो Staph aureus है ना, it has this particular predilection to reach the bone or to bind to the bone proteins. And the way to explain that is by stating कि जो Staph aureus है ना, जो microbe है ना, जो microorganism है, on its surface it basically has these receptors, यानी फिर उसके surface पर ऐसी proteins होती हैं which have affinity or which are specific for certain bone matrix components. Bone क्या है? We have matrix and we have the cells, ठीक है? तो bone matrix proteins के लिए वो receptor specific होते हैं. For example, Staph aureus can have receptors which are specific for collagen, which is a very important component of bone, evidently, ठीक है? So this explains कि 80 to 90% cases में जो recovered organism है वो Staph aureus क्यों होता है? Because obviously the organism has this predilection to reach and implant on bone. इसके अलावा और भी organisms हो सकते हैं. For example, we have certain organisms जो कि जिनको हम classically remember करते हैं as being enteric gram negative from our studies in microbiology.
जिसमें वी हैव इकोलाई एंड वी हैव क्लेप्सियला and we have pseudomonas. ठीक है, pseudomonas as we know was particularly annoying because it was difficult to treat, and klebsiella also frequently caused UTI. So ये तीन organisms have also been quite frequently recovered. ठीक है, but if the organism is basically isolated and it's one of these three, then it's likely in the context of someone who already had an infection of the genitourinary tract, यानी either the genitalia या फिर infection था urinary tract का, often times दोनों का एक साथ ही होता है, and then that person secondarily developed bacteremia followed by osteomyelitis. तो ये बात भी rather interesting है and rather important to know है. ठीक है, और similarly दो ऐसी conditions हैं जिसमें osteomyelitis develop करता है secondary to the enteric gram negatives. एक तो यही है genitourinary infection, second है IV drug abusers. ठीक है, उनमें भी डेवलपमेंट हो सकती है. ऑफन टाइम्स जो पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना, उसमें एक मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, एंड दीज जनरली हैपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट इम्प्लांटेशन आइदर बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड फ्रैक्चर और बिकॉज ऑफ एन ऑर्थोपीडिक प्रोसीजर. ठीक है, अच्छा, तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट होगी. जो न्यूनेटल पीरियड है ना, व्हेन द चाइल्ड इज़ जस्ट बॉर्न, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल अ लिटिल बियॉन्ड दैट, बेसिकली विद इन द फर्स्ट मंथ, उसमें अगर एक न्यूनेट प्रेजेंट करता है ना विद ऑस्टियोमाइलाइटिस, then the most common agents include ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, एंड इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर स्टडीज़ तो ग्रुप बी को हमने ऑफन टाइम्स न्यूनेटल मेनिंजाइटिस में भी इम्प्लीकेट किया था, एंड द सेम गोज़ फॉर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी. तो इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना बेसिकली मेक्स इट ईजियर. एक बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ वाला जो पेशेंट है, देयर इज़ अ पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज़, तो उसमें अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, एंड द आंसर इज़ सैल्मोनेला. उसकी वजह यह है कि सैल्मोनेला एक इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, और सिकल सेल डिजीज़ में ऑटो इन्फाक्शन होती है स्प्लीन की, एंड वेन एवर द स्प्लीन इज़ एबसेंट और रिमूव्ड फॉर बिकॉज ऑफ whatever reason, because of whatever therapeutic intent, the patient becomes very susceptible to infections by encapsulated organisms including salmonella. इसलिए in patients with sickle cell disease, salmonella is the leading cause of osteomyelitis secondary to sepsis. ठीक है, ठीक है. So sickle cell disease के जो patients हैं, they are predisposed to salmonella infections. ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं, विच इज़ बेसिकली द मॉर्फोलॉजी. लेट्स बेसिकली डिस्कस द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, एंड द वे आई डू दिस इज़ आई टेंड टू राइट इट डाउन ऑन अ रजिस्टर, ताकि ये बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएँ. ठीक है, अब ऑस्टियोमाइलाइटिस एक इन्फेक्शन है. ठीक है, इट्स एन इन्फ्लेमेशन. सो जो मॉर्फोलॉजी है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़ एज वेल एज द लोकेशन. स्टेज मतलब whether the condition is acute, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, whether it is subacute, या फिर condition chronic हो गई है. ठीक है, and I'll basically be telling an example. For example, there was a question which came up that there was a 7-year-old boy who basically had a fall and had an open fracture which was set into place and sutured, but no further action was taken. And एक साल बाद तक भी basically the boy had pain as well as eventually there was the development of a draining sinus tract. ठीक है, so in this case obviously the stage of the condition is chronic. There was an acute infection which was not basically treated and it became chronic. Virulence obviously also has an impact on the stage. The second point affect करता है morphology को is evidently the location. देखो, सबसे पहले जब बैक्टीरिया पहुंचता है ना बोन को, इट डजंट मैटर कि वो ब्लड के ज़रिए पहुंचा है इन एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन, या फिर डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हुई है थ्रू एन ओपन वूंड. ठीक है, डजंट मैटर. सबसे पहले उसने बोन में पहुंच कर अपने आप को प्रोलिफरेट करना है, जैसे वो किसी और भी साइट पर करेगा. ठीक है, एंड सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होगी. इसको आप लिख लें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की, एंड यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो कि इन्फ्लेमेशन में क्या 5 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अब जब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप करेगा, सो वी हैव इंट्रैप्ड बोन.
ठीक है, एंड वी हैव बैक्टीरिया. सो जो इंट्रैप्ड बोन है इट विल अंडरगो नेक्रोसिस विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स. ठीक है, नेक्रोसिस हो रही है विद इन 48 आवर्स, यानी पहले 2 दिन में फॉलोइंग द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो बीच में बोन फंस गई है इट विल अंडरगो नेक्रोसिस. ठीक है ना. एंड जो बैक्टीरिया है ना और जो इन्फ्लेमेशन है ना वो स्प्रेड करेगी विद इन द डायफिसिस यानी विद इन द शाफ्ट ऑफ द बोन. ठीक है, एंड हो सकता है वो पेरियोस्टियम तक भी पहुंच सके. बोन की क्या लेयर्स होती हैं? मिडलरी कैविटी जिसमें वी हैव द मैरो, देन वी हैव द कॉर्टेक्स, सबसे बाहर वी हैव द पेरियोस्टियम. सो वी वर सेइंग कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो बेसिकली स्प्रेड करेगा. कैसे स्प्रेड करेगा? विद इन द शाफ्ट ऑफ द बोन, विद इन द कॉर्टेक्स, एंड हो सकता है वो हर्वर्जन सिस्टम के थ्रू पर्कुलेट करते हुए पेरियोस्टियम तक भी पहुंच सके विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन. ठीक है, एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. अभी हमने ये कहा है कि विद इन 48 आवर्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई है और जो इंट्रैप्ड बोन है दैट इज़ बिकम नेक्रोटिक एंड द इन्फ्लेमेशन हैज स्प्रेड through the shaft of the bone, through the diaphysis and might even reach the periosteum. अब देखें जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप. जो चाइल्ड है ना उसका पेरियोस्टियम कॉर्टेक्स के साथ सिर्फ लूजली एडहेरेंट होता है. ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल कि बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द कॉर्टेक्स उन दोनों के बीच में एक साइजेबल यानी एक सिग्निफिकेंट साइज का एब्सेस डेवलप हो सकता है. एब्सेस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है विच इज़ बेसिकली बिकम वॉल्ड ऑफ. एक साइजेबल सब पेरियोस्टियल यानी पेरियोस्टम के नीचे एब्सेस बन जाता है एंड इट कैन ट्रैक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस along the bone surface. ठीक है, so this is one thing which will happen in a child, the development of a subperiosteal abscess. ठीक है, अब दूसरी बात यह कि जब ये subperiosteal abscess बनेगा तो you should be aware कि पेरियोस्टियम के थ्रू ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं. सो जब लिफ्टिंग होती है ना पेरियोस्टियम की इट कैन फर्दर इम्पेयर द ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया. तो 2 बातें हो रही हैं. विद इन द बोन एक सप्यूरेटिव प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो इंट्रैप्ड बोन है इट बिकम्स नेक्रोटिक. सेकेंडरीली सब पेरियोस्टियल एब्सेस की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा एंड दीज विल ऑल लीड टू सेगमेंटल बोन नेक्रोसिस. और जो डेड पीस होती है ना बोन की विच इज़ बेसिकली इंट्रैप्ड बाय दिस वी कॉल इट सिक्वेस्ट्रम. ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सिक्वेस्ट्रम का ये बार बार पूछते हैं वेरियस MCQs में. जो इंट्रैप्ड पीस है ना डेड बोन का बिकॉज ऑफ 2 प्रोसेसेस द सपरेटिव एंड द इस्कीमिक दैट इज़ नोन एज सिक्वेस्ट्रम. इवेंचुअली ये हो सकता है कि जो पेरियोस्टियम इवेंचुअली व्हाट बेसिकली हैपन्स इज़ कि जो पेरियोस्टियम है वो रप्चर कर जाती है. So we had a subperiosteal abscess which was lifting off the periosteum and therefore impairing the blood supply to the bone, leading to ischemic necrosis of the bone and contributing to the destructive effect of the suppurative process. इसके अलावा ये होता है कि जो पेरियोस्टियम है वो रप्चर कर सकती है. ठीक है, एंड जाहिर सी बात है जब पेरियोस्टियम रप्चर करेगी तो इट विल लीड टू अ सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस. ठीक है, पहले एक सब पेरियोस्टियल एब्सेस बना था. ठीक है, बच्चों में स्पेसिफिकली. फिर जब इवेंचुअली पेरियोस्टियम रप्चर कर जाएगी एंड जो सपरेटिव प्रोसेस है वो बाहर चला जाएगा तो इट वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इवेंचुअली जैसे कि ये इन्फेक्टिव प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन इवेंचुअली फ़ौरन नहीं एक ड्रेनिंग साइनस बन जाएगा जिससे पस बाहर ड्रेन कर रही होगी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो एक ड्रेनिंग साइनस की डेवलपमेंट हो जाएगी. समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सिक्वेस्ट्रम है ना विच इज़ बेसिकली द इंट्रैप्ड नेक्रोटिक बोन है. तो क्योंकि वो नेक्रोटिक है इट्स नॉन वाइबल टिश्यू तो समटाइम वो सिक्वेस्ट्रम क्रम्बल कर जाता है एंड फ्री किस्म की फॉरेन बॉडीज़ बनती हैं विच कैन पास थ्रू दिस साइनस ट्रैक्ट. ठीक है, अब इन्फेंट्स में वो बात बता रहे हैं कि जो एपिफिजियल इन्फेक्शन है ना बोन के भी पार्ट होते हैं. शाफ्ट को डायफिसिस कहते हैं, फिर आता है मेटाफिसिस और जो एंड्स हैं उनको हम एपिफिसिस कहते हैं. इन्फेंट्स यानी चिल्ड्रन यंगर देन 1 year उनमें ये होता है कि जो एपिफिसिस का इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड कर सकता है
थ्रू द आर्टिकुलर सर्फेस, ठीक है, और जॉइंट में एंटर हो जाता है, लीडिंग टू आइदर टू अ कंडीशन नोन एज सेप्टिक आर्थराइटिस, इसको हम सपरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। ऐसा बड़ों में कम होता है, इन्फेंट्स में इट्स क्वाइट कॉमन, ठीक है। इस केस में ये होता है कि जब सेप्टिक आर्थराइटिस की डेवलपमेंट होती है थ्रू थ्रू डायरेक्ट स्प्रेड वाया द आर्टिकुलर सर्फेस, तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी रिजल्ट्स, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही एक प्रोसेस वर्टिब्रा को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन होता है वर्टिब्रा का, ठीक है, और ये जो है ना इन्फेक्शन वर्टिब्रा को वो इन्वॉल्व कर लेता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, और वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू स्प्रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करके एजेसेंट वर्टिब्रा तक इन्फेक्शियस प्रोसेस पहुंच जाता है। सो जाहिर सी बात है दिस विल आल्सो लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। सो फर्स्ट 48 आवर्स में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप होता है, एंड फर्स्ट 48 आवर्स में नेक्रोसिस भी डेवलप होती है, फॉर्मेशन होती है सिक्वेस्ट्रम की। बच्चों में सब पेरियोस्टियल एब्सेस भी बन सकता है विच कैन लीड टू रप्चर ऑफ द पेरियोस्टियम लीडिंग टू सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस। इवेंचुअली एक ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट बन जाता है। पॉइंट ये है कि जब पहला वीक गुजर चुका होता है ना, उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम हो जाते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा होने लगते हैं, एंड वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। क्योंकि जो क्रॉनिक वाले सेल्स हैं ना उसमें वी हैव स्टफ लाइक मैक्रोफेजेस, एंड वी नो कि मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साइटोकाइंस। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये वेरियस साइटोकाइंस बनाते हैं जिनकी वजह से स्टिमुलेशन होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑस्टियोक्लास्ट की, जो कि नॉर्मली बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना आफ्टर 1 वीक दे स्टार्ट रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, यानी बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है बाय द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा रिएक्टिव बोन की डेपोजिशन शुरू हो जाती है पेरिफ्री में, ठीक है। अच्छा, और इन ग्रोथ शुरू हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की, बिकॉज जो साइटोकाइंस दे ऑल्सो लीड टू वेरियस फाइब्रोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये 3 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो नई बोन डिपॉजिट हो रही है ना ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एंड्स अप फॉर्मिंग अ स्लीव ऑफ लिविंग टिश्यू अराउंड द डेड टिश्यू। वी ऑलरेडी नो कि व्हेन द बैक्टीरिया रीच द बोन, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, बैक्टीरिया बोन तक पहुंचा था विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ऐसा ही होता है जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं तक पहुंचता है, and because of that acute inflammatory reaction which did not remain confined rather spread along the shaft and sometimes also into the periosteum, इसकी वजह से विदिन 48 आवर्स नेक्रोसिस हो गई थी, ठीक है। एंड ये जो नेक्रोटिक इंट्रैप्ड बोन थी वी कॉल्ड इट द सिक्वेस्ट्रम, ठीक है। एंड जो सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस थी उसकी वजह से फर्दर इस्कीमिया हुआ था, वी ऑलरेडी नो दैट। अब हम कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस एट्सेट्रा, जो कि वेरियस साइटोकाइंस बनाएंगे, जिनकी वजह से 3 बातें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोक्लास्ट बोन के रिजॉर्प्शन को स्टार्ट करेंगे, एंड द ऑस्टियोब्लास्ट वुड नाउ स्टार्ट टू सिक्रीट मोर बोन, या रिएक्टिव डेपोजिशन होगी बोन की, नई बोन की। थर्डली फाइब्रस टिश्यू की भी इनग्रोथ होगी। अभी जो नया रिएक्टिव बोन ले डाउन हो रहा है ना ये एक स्लीव बनाएगा लिविंग टिश्यू की, बिकॉज ये तो न्यू बोन है ना, ये लिविंग है, अराउंड द सेगमेंट ऑफ डिवाइटलाइज्ड इन्फेक्टेड बोन। वी ऑलरेडी स्टेटेड कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में सेगमेंटल नेक्रोसिस होती है, तो ये जो स्लीव है लिविंग टिश्यू की ये सराउंड करेगी सेगमेंट ऑफ डिवाइटलाइज्ड इन्फेक्टेड बोन, ठीक है। तो इस सब सिचुएशन को हम कहते हैं इनवॉल्यूक्रम, and this is why I have used multiple colors to basically highlight involucrum, because sequestrum की तरह involucrum भी एक बहुत ही important term है which is asked in MCQs. Several morphologic variants of osteomyelitis have eponyms. We have something called Brody's abscess, we have something called sclerosing osteomyelitis of Guérin, जो कि इन्फेक्शन होता है जॉ का, उसमें एक्सटेंसिव न्यू बोन फॉर्मेशन होती है। अब जब हेमाटोजेनिस स्प्रेड होता है इट कैन मैनिफेस्ट एज एक्यूट इलनेस, सिस्टमिक इलनेस पूरी बॉडी वाली, इसमें बुखार है, WBC काउंट ज़्यादा होता है, एंड जो अफेक्टेड एरिया है ना उसके ऊपर मार्क्ड थ्रॉबिंग पेन होता है। समटाइम्स दे माइट जस्ट बी अनएक्सप्लेन फीवर, जैसे कि एक इन्फेंट में हो सकता है, और दे माइट जस्ट बी लोकलाइज्ड पेन
जो कि एक कॉमन प्रेजेंटेशन है, कॉमन आइसोलेटेड प्रेजेंटेशन है इन द एडल्ट. So it can present as pyrexia of unknown origin in the child and as isolated localized pain in the adult. What basically strongly suggests the diagnosis is a characteristic radiographic finding of a lytic focus of bone destruction, which happens to be surrounded by a zone of sclerosis. We said कि involucrum बनता है which is reactive bone formation. ठीक है, तो ये important है कि lytic focus है surrounded by a zone of sclerosis. लेकिन आपको further biopsy और bone culture की ज़रूरत होती है in order to identify the pathogen. ठीक है, और 5 to 25% केसेस में acute जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता और persist करता है as chronic infection. कब हो सकता है ऐसा? अगर डायग्नोसिस डिलेड हो, बोन नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी हो बाय दैट टाइम, जब एंटीबायोटिक थेरेपी की गई हो तो वो इनएडिक्वेट हो, या सर्जिकल डिब्राइडमेंट ठीक से ना की गई हो, या मे बी इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल हो. बीच बीच में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो एक्यूट फ्लेयरअप्स भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मली स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड कैन अकर आफ्टर ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये कॉमन प्रेजेंटेशन है मोस्ट बोन लीजन्स की एंड डिसऑर्डर्स की. सेकेंडरी इमाइलॉइडोसिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है स्प्रेड, ये फोकस ऑफ इन्फेक्शन के तौर पर एक्ट करेगा ना, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस एंड सेप्सिस हो सकता है. एंड जो ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट है उधर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, और जो इन्फेक्टेड बोन है उसमें सार्कोमा डेवलप हो सकता है. सो दो एसोसिएटेड लीजन्स हैं, ऑस्टियोसार्कोमा इन द इन्फेक्टेड बोन and squamous cell carcinoma in the draining sinus tract.